रूस यूक्रेन युद्ध दिन पर दिन खिंचता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि रूस यूक्रेन को कच्चा चबा जाएगा, उनकी बोलती बंद है। रूस यूक्रेन युद्ध के 11 महीने होने वाले हैं और जंग जारी है। इसके साथ ही साथ लोगों की मौत और हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है और दुनिया के देश चुप है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का मानना है कि इस हमले में रूस के 70 से 80 हजार सैनिक हताहत हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि सोवियत संघ ने 1 दशक तक चले अफगानिस्तान युद्ध में जितने सैनिकों को गंवाया था, उससे ज्यादा सैनिक यूक्रेन युद्ध में मात्र 11 महीने में मारे गए। इसके बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हार मानने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। अब इस युद्ध को लेकर कुछ नए घटनाक्रम जारी हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत के पीएम मोदी चाहे तो युद्ध रुक सकता है। इसके साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने हाथ जोड़कर मोदी से अपील की कि आप रूसी नेताओं से बात करें और युद्ध को रोकने में मदद करें। इसी बीच अब एक और बड़ी खबर आ रही है। खबरों की माने तो अमेरिका ने पीएम मोदी के उस बयान से एक बार फिर सहमति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते चले कि ये बात मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात में कही थी, समरकंद में। अब सुनते हैं कि आखिर अमेरिका ने आगे क्या कहा। अमेरिका ने कहा है कि भारत जैसे देश जिनके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करवा सकते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में कहा कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई के मसले पर अपने सभी सहयोगियों के संपर्क में हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। सुनिए क्या कहा अमेरिकी प्रवक्ता नेड प्राइस ने। We are engaging very closely with all of our allies and partners around the world on the question of Russia's brutal aggression against Ukraine. Of course, that includes India. The international community firmly recognizes the need to hold Russia to account for the atrocities that it's committed and that its forces are committing in Ukraine. Russia's war has affected not only Ukraine, as important as Ukraine is, and this conflict, this war that Russia is perpetrating against Ukraine is, this is much bigger in a sense. It has affected countries around the world in any number of ways. Foreign Minister Jaishankar stated during his November visit to Moscow that this war, in the aftermath of 2 years of the COVID pandemic, has caused significant economic pain, particularly to developing countries. We've also have seen a spike in food prices, a spike in energy prices, upwards in pressure on inflation around the world. All of these are exacerbated by Russia's illegal, unprovoked war against Ukraine. We have been in regular, close contact with India regarding what we can do to hold Russia accountable and to impose additional costs on Russia for its war. We may not always share the precisely the same policy approaches, but we both share a commitment to upholding a rules-based international order that respects territorial integrity and sovereignty. That is at the heart of our global strategic partnership with India. It is at the heart of what we seek to do with the Quad, with the other bilateral and multilateral work we do with our Indian partners. We agree very much with India that the restoration of an enduring peace in Ukraine is essential. This is the same message that President Zelensky himself has issued. During the G20, he spoke to the assembled world leaders, laid out his vision for a just peace. This is something that we very much welcome. We do welcome India's support for the people of Ukraine. India has provided humanitarian assistance and calls by India for an immediate end to Russia's brutal war against Ukraine.
We also very much agree with Prime Minister Modi's assertion that today's era is not an era of war. Of course, that was a comment that was echoed at the G20. We've heard that comment at the UN as well. And we do believe that countries like India, countries that have a relationship with Russia and with Ukraine, may be in a position to help bring about dialogue and diplomacy that could one day put an end to this war. I say one day, and I put this in the conditional, because there is one country that, of course, has demonstrated no willingness to put an end to this war. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं नेड प्राइस साहब? आप नहीं समझे तो हम हिंदी में आपको समझाते हैं। नेड प्राइस साहब कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के सवाल पर भारत समेत अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत नजदीक से बातचीत कर रहे हैं। पूरा विश्व यूक्रेन में हो रहे अत्याचारों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की जरूरत को मजबूती से स्वीकार कर रहा है। रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए क्या किया जा सकता है, इसे लेकर हम लगातार भारत के संपर्क में हैं। दोनों देश एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता साझा करते हैं, जो देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करती है। ये भारत के साथ हमारी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के केंद्र में है। नेड प्राइस ने आगे कहा कि हम भारत से सहमत हैं कि यूक्रेन में शांति की बहाली जरूरी है। उन्होंने कहा, हम भारत से सहमत हैं कि यूक्रेन में शांति की बहाली जरूरी है। हम यूक्रेन के लोगों के लिए भारत के समर्थन का स्वागत करते हैं। हम पीएम मोदी की इस बात से भी सहमत हैं कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। G20 में भी यही बात कही गई थी। हमारा मानना है कि भारत जैसे देश रूस यूक्रेन के बीच संवाद और कूटनीति स्थापित करने में अहम योगदान दे सकता है, जिसकी वजह से एक दिन ये युद्ध खत्म हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मोदी की बात को अमेरिका दोहरा रहा है और कह रहा है कि भारत युद्ध रुकवाने में मदद करे। देखना होगा कि आगे भारत क्या करता है और क्या नहीं। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि भारत अब विश्व नेताओं में शुमार हो चुका है और अपनी भूमिका निभा रहा है। तभी तो अमेरिका हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत कुछ करे और किसी तरह युद्ध को रुकवाए। आपको हम वो पुरानी बात एक बार फिर दिमाग में ताजा कर देते हैं, जब पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से क्या कहा था। आप भी सुनिए। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों को बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उनको रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से
हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा